Bismillahirrahmanirrahim. Peshawar Public School and College. Dear students, Assalamu alaikum. Today we will discuss about chapter number 13, S&P block elements, lecture number 10. The topic of our discussion is reaction of oxides of group 1 with water and dilute acids, reaction of group 1 elements with chlorine, and the thermal stability of nitrates, carbonates, and bicarbonates of group 1 and group 2 elements. Now, the learning objectives of these topics are number 1, types of oxides and their reaction with water and dilute acids. Number 2, polarizing power and polarizability. Number 3, effect of heat on nitrates, carbonates, and bicarbonates of group 1 and group 2 elements. Now, how to identify the types of different oxides? So, dear students, as we have discussed in our previous lectures about the type of oxides, like they may be normal oxides, they may be peroxides, or they may be superoxides. So, first of all, you look at the top right side. If we have a normal oxides or simple oxide, the oxidation state of the oxygen, it will be -2, and the oxygen will be present in a compound in the monoatomic form. But if we have peroxide, which is the second type of oxide, so we have oxygen in the molecular form, diatomic form O2, and its oxidation state will be -2 in a compound. But if we have a superoxide, it will be also in the diatomic form like O2, and its oxidation state will be -1. So we can differentiate between these three type of oxides in such a way. Now there is a trick given from which we can detect about the type of oxides. Like suppose, students, if anyone asks from you Rb2O2, which is rubidium oxide, it's superoxide, peroxide, or normal oxides. So now what we should do for it? Like students, we will write it in such a way. हम इसको इस तरह से लिखेंगे कि आपके पास जो रुबीडियम है वो फर्स्ट ग्रुप का मेंबर है, तो उसका जो चार्ज होगा वो +1 होगा, कैटाइन में हम उसको लिख लेंगे, और 2 टाइम्स है तो हम 2 रुबीडियम +1 लिख लेंगे। आपका जो A9 है वो O2 है, ठीक, और A9 के नीचे आप O2 लिख लेंगे। उसके ऊपर आपने -2 इसलिए लगाया क्योंकि रुबीडियम के ऊपर +1 है और ऑक्सीजन के ऊपर -2, तो वो जो फार्मूले में अगर आप देख लें तो O2 का जो -2 है वो 2 जो है वो नीचे रुबीडियम के नीचे आ गया है फार्मूले में। आपको अगर फार्मूला गिवन है Rb2O2 और आपसे कहा जा रहा है कि आप इसमें आइडेंटिफाई करें, सो आप उसको ओपन कर लेंगे। रुबीडियम आपने लिख लिया, ऑक्सीजन आपने लिख लिया, दोनों के ऊपर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिख ली। अब आपके माइंड में आएगा कि ऑक्सीजन के ऊपर कैसे लिखा, तो वो आप अगर रुबीडियम के नीचे देख ले 2 लिखा हुआ है तो वो उसी ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है नेगेटिव साइन के साथ। तो अब अगर आप टॉप राइट साइड पे आ जाए वापस, तो आपके पास जो O2 - 2 है वो पर ऑक्साइड का फॉर्म है, तो आप उसको कहेंगे कि दिस इज़ रुबीडियम पर ऑक्साइड। नाउ लुक एट द सेकेंड वन, कैल्शियम ऑक्साइड. Calcium has +2 oxidation state because calcium belongs to second group, and oxygen has -2 because here is nothing given below calcium and oxygen in the formula of calcium oxide. So +2 and -2, they will cancel each other. It means oxygen will be present in the monoatomic state and it is -2. So again come to top right side, O single monoatomic form, and -2 it is a normal oxide. So we will write calcium oxide. Okay, we don't say calcium peroxide or calcium superoxide. Now if you look at the strontium oxide, SrO2, so you will write Sr +2 because Sr belong to second group, and O2 we have written -2. With O2 we have written -2 because they will cancel each other and there is nothing present below strontium, that's why we have written -2. So -2 and +2 cancel out each other, and SrO2 we can write, like in the first case O2 -2, that 2 was written below rubidium because rubidium belong to first group, so there will be no cancellation. The +1 and -2 do not cancel each other, but in this case the +2 and -2 cancel out each other, and we will write SrO2. So it is O2 -2 is actually peroxide, so it is strontium peroxide.
Now KO2, K belong to first group, so K plus 1, and O2 minus 1 is written due to this reason because below K there is nothing given, so it is minus 1. Minus 1 plus 1 cancel each other on KO2 is actually O2 minus 1. If you look at the top right side, it is a superoxide form. So we will write it is potassium superoxide. Now sodium, in case of sodium peroxide, and in the same way sodium normal oxide and cesium superoxide, same is the case. So now we will go ahead. Now the topic of our discussion is the reaction of oxides with water and dilute acids. So the oxides of the alkali metals. Actually, first we will discuss about these oxides. Like in the table, we have identified, we have discussed about the technique that how we can identify. So here we will now discuss why are different oxides form as we go down the group 1A. So number one is the normal and simple oxides. So the lithium and sodium up to some extent, like sodium up to some extent, but the lithium mostly, it forms simple or normal oxide like X2O. It will be the formula, and in this case the oxygen will be present in the minus O minus 2 form, which is a normal or simple oxide. जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास नॉर्मल ऑक्साइड में जो ऑक्सीजन है वो O माइनस 2 फॉर्म में मौजूद होगा। तो इसका जो नॉर्मल ऑक्साइड का जो फार्मूला होगा वो X2O होगा, जैसे कि पीछे आप टेबल में देख चुके हैं Na2O में या एटसेट्रा और एग्जाम्पल्स में। नाउ द सेकेंड वन इज peroxide. सो द सोडियम एंड द पोटेशियम अप टू सम एक्सटेंट फॉर्म peroxides. इसका मतलब ये है कि ऊपर हमने कहा सोडियम अप टू सम एक्सटेंट, यानी सोडियम जो है वो नॉर्मल ऑक्साइड कुछ हद तक बनाएगा, लेकिन मोस्टली वो जो peroxides है वो बनाएगा। peroxide का जो जनरल फार्मूला होगा दैट विल बी X2O2 एंड इट्स वी कैन राइट इट इन सच अ फॉर्म O2 minus 2. Now the superoxide, potassium, rubidium and cesium, they form superoxides. So the general formula will be XO2. X is mostly used for the metal, but containing the superoxide ion which is O2 minus, minus mean minus 1. So superoxide का जो फॉर्म है वो O2 minus 1 के फॉर्म में हम उसको लिखेंगे। सो यानी रिएक्शन ऑफ ऑक्साइड्स विद वाटर एंड डाइल्यूट एसिड्स को डिस्कस करने से पहले हमने टाइप ऑफ ऑक्साइड्स डिस्कस कर लिए हैं। सो नंबर वन, रिएक्शन ऑफ नॉर्मल और सिंपल ऑक्साइड्स विद वाटर। हम अब वन बाय वन रिएक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्साइड्स विद वाटर एंड डाइल्यूट एसिड्स डिस्कस करेंगे कि हमारे पास क्या क्या प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। So these are the simple basic oxides. They react with water and they give metal hydroxides. If you look at the general reaction, like X2O is the general formula of the normal oxide. When it is treated with water, it results in the formation of um, metal hydroxides. Like X is written for the metal generally, and XOH. Now the common example will be if we take Na2O, which is sodium normal oxide. So when it is treated with water, it results in the formation of sodium hydroxides. It's a common example. In the same way, lithium oxide we can also treat with water. We get the lithium hydroxide. So in sodium oxide, I have written above O minus 2, and O is present hence here in the monoatomic form, and the oxidation state is minus 2, so it is the normal oxide form. Now reaction of peroxides with water. Now when peroxides, which has the general formula X2O2, when they are treated with water, they result in the formation of नॉट ओनली मेटल हाइड्रोक्साइड बट आल्सो हाइड्रोजन पेरोक्साइड। यानी यहाँ पर हमारे पास 2 प्रोडक्ट्स बनेंगे, जबकि फर्स्ट केस में सिर्फ एक प्रोडक्ट हाइड्रोक्साइड बन रहा था, मेटल हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे साथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी बनेगा। सो दीज आर वेरी स्ट्रॉन्गली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो ये जो रिएक्शन इसमें हीट बहुत ज़्यादा रिलीज़ होती है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो फर्दर डिकम्पोज हो जाता है वाटर और ऑक्सीजन में। ये हम बार बार इसी रिएक्शंस में डिस्कस करेंगे। Now the common example is sodium peroxide treated with water result in the formation of sodium hydroxide as well as hydrogen peroxide. Now potassium peroxide, when it is treated with water, it result in the formation of metal hydroxide, potassium hydroxide as well as hydrogen peroxide. Now reaction of superoxides with water. Now in this case, if you look at the general formula, XO2 is the general formula of the superoxide. When it is treated with water, it result in the formation of 3 products here. Now metal hydroxide, XOH, hydrogen peroxide, and along with these 2 products, oxygen is also formed. Like in the first case, in the reaction of normal oxide with water, only metal hydroxide is formed. While in the second case, like reaction of peroxide with water, metal hydroxide and hydrogen peroxide form. While in the third case, in the third type, like superoxides, when they are treated with water, they result in the formation of metal hydroxide, hydrogen peroxide, and oxygen. So now the common example is given, like potassium
superoxide when it is treated with water KO2. It results in the formation of potassium hydroxide, hydrogen peroxide, and oxygen. Now next is the reaction of oxides of group 1 with dilute acids. As we have discussed earlier about the reaction of oxides of group 1 with water, now we are going to discuss the reaction with dilute acids. So one by one we will discuss them, like three different type of oxides they are going to react with dilute acids. So first, the normal oxides when it react with the dilute acids, so they result in the formation of normal oxide when they are treated with dilute hydrochloric acid. They result in the formation of salt and water. Like XCl is a salt, X show the metal atom, and H2O is water. Now the common example is given sodium oxide Na2O. When it is a normal oxide when it is treated with hydrochloric acid, it results in the formation of sodium chloride and water. Now second is the reaction of peroxides with dilute acids. So now when peroxides when they are treated with dilute acids, they not only give the sodium the salt and water, but also give along with them they produces the when peroxide is treated with the dilute acid, they result in the formation of salt as well as hydrogen peroxide. Like in the previous case water is formed, but in this case hydrogen peroxide will form. Like one of the product is different. So now the next is a common example of the when sodium peroxide when it is treated with the dilute hydrochloric acid, it results in the formation of sodium chloride, which is a salt, and hydrogen peroxide. Now the reaction of superoxides with the dilute acids. Now when the superoxides, these reactions are also very exothermic, and when a solution which contain salt and hydrogen peroxide is formed. In this case, when a superoxide is treated with dilute acid, and the reaction is exothermic, so the hydrogen peroxide it will decompose into water and oxygen if the temperature is rises. So now look at the general example of the superoxides. When they are treated with hydrochloric acid, they result in the formation of salt, HCl, hydrogen peroxide, and along with it the oxygen is formed. Like in the first case, we have discussed that when the normal oxide is treated with dilute acid, it results in the formation of salt and water. While in the second case, we have discussed that when the peroxide is treated with dilute acid, it results in the formation of salt and hydrogen peroxides. While in this third case, when the superoxide is treated with dilute acid, it results in the formation of salt like HCl, hydrogen peroxide, and oxygen gas. So in all three cases, the products are a little bit different from each other. Now as the common example is given, like potassium superoxide, when it is treated with dilute acid, hydrochloric acid, it results in the formation of potassium chloride, which is a salt, hydrogen peroxide, and oxygen. Now the next is reaction of group 1 elements with chlorine. Like alkali metals like sodium, when it burns with intense orange flame in chlorine in exactly the same way as it does in the pure oxygen. Like the alkali metals, as they react with oxygen, they in the same way react with the chlorine and result in the formation of salts. The other alkali metals like potassium, they also behave in the same way like sodium, and as a result, white solid chlorides of the metal are formed on reaction with the chlorine molecule. If you look at the general example, like X is a alkali metal, when it is treated with the chlorine molecule, it results in the formation of XCl, which is a solid metal chloride. And the common example is when sodium is treated with chlorine, it results in the formation of sodium chloride salt. In the same way, potassium is when treated with chlorine, it results in the formation of potassium chloride. Now the next we will discuss about the effect of heat on the nitrates, carbonates, and bicarbonates of the group 1A and group 2A elements in terms of polarizing ability of the positive ion. So we can say that effect of heat in another way. We can say that it is the thermal. We are going to discuss about the thermal stability of carbonates, bicarbonates, and nitrates in terms of polarizing power. Thermal stability actually means the ability to resist the effect of heat.
First of all, we discuss in this topic about the polarizing power of cation and the polarizability of the anion. So what is the polarizing power? The polarizing power is actually the ability of a cation to distort anion and cause the decomposition of a compound. That compound in which that cation is present, that is called the polarizing power of cation. Now we can understand it from the example. So the polarizing power of cation, it has inverse relation with the size of ion. When we go from top to bottom in a group, the polarizing power will decreases. Like if we have a charge, if we have an ion, a cation of small size and greater charge density, it will has more polarizing power. Polarizing power actually means it will disturb or destroy the electrons around the anions which are present. It will deform its shape, and as a result the decomposition will occur. So greater the polarizing power of the cation, easy will be the decomposition of that compound. Like here is given, the polarizing power of the cation has direct relation with the charge density of the cation. When we go from top to bottom in a group, the charge density decreases. So the polarizing power will, if the charge density will decreases, the polarizing power will also decreases. नाउ डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप अगर देख लें, डेंसिटी जो है वो हमारे पास आप लोग जूनियर लेवल से जानते हैं कि वो मास पर वॉल्यूम के बराबर होती है। लेकिन हम अगर मास की जगह यहाँ पर चार्ज लिख लें और वॉल्यूम की जगह हम यहाँ पे साइज़ लिख लें, तो जो डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी चार्ज के साथ उसका डायरेक्ट रिलेशन है, चार्ज डेंसिटी का साइज़ के साथ उसका इन्वर्स रिलेशन है। यानी अगर हम एक ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाएंगे तो साइज़ ऑफ cation जो है वो इंक्रीज़ होता है। जैसे कि आप एटॉमिक रेडियस से जान चुके हैं कि टॉप टू बॉटम जब आप जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस जो है वो बढ़ता है, तो साइज़ ऑफ cation जो है वो भी इसी तरह इंक्रीज़ होता है। जबकि जो चार्ज डेंसिटी है वो डिक्रीज़ होगी और पोलराइजिंग पावर ऑफ cation जो है वो डिक्रीज़ होगा। चार्ज डेंसिटी डिक्रीज़ होगी का मतलब ये है कि आपके पास जो टॉप पे आइंस होते हैं किसी भी ग्रुप में, तो उनका चार्ज तो पूरे एक ग्रुप में अगर आप ग्रुप 1 को ले लें सेम रहता है। जैसे +1 चार्ज है ग्रुप 1 का या +2 चार्ज है ग्रुप 2 का। लेकिन अगर आप टॉप टू बॉटम जाए तो जो ऊपर वाले एलिमेंट है टॉप पे, उनका जो साइज़ है वो छोटा है। यानी हम कहेंगे कि चार्ज तो सेम है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम अगर हम कहें तो वो उस चार्ज के लिए वो जगह कम है जिसमें वो ऑक्युपाई हो रहा है। लेकिन अगर हम नीचे जाएं ग्रुप में तो वो जो चार्ज की क्वांटिटी है वो तो सेम है, लेकिन वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ हो गया है, साइज़ बढ़ गया है। तो हम कहेंगे कि चार्ज डेंसिटी जो है वो डिक्रीज़ हो गई है, यानी चार्ज टू वॉल्यूम रेशो जो है वो कम हो गया है, वॉल्यूम ज़्यादा हो गया है, चार्ज जो है उसमें सेम है। तो हम कहेंगे कि चार्ज डेंसिटी जो है वो टॉप टू बॉटम डिक्रीज़ हो गई है। जबकि पोलराइजिंग पावर अभी डिटेल में हम इस एग्जांपल में समझेंगे, वो जो है वो डिक्रीज़ हो गया है क्योंकि चार्ज डेंसिटी के साथ उसका डायरेक्ट रिलेशन है। नाउ अब ये तो पोलराइजिंग पावर था। पोलराइजेबिलिटी क्या है? पोलराइजेबिलिटी का लफ्ज़ हम anion के लिए यूज़ करेंगे। हम कहेंगे कि इसको कि द एबिलिटी ऑफ anion टू फॉर्म इंस्टेंटेनियस डायपोल ड्यू टू डिस्टॉर्शन कास्ड बाय द cation। ये जो इंस्टेंटेनियस डायपोल वर्ड लिखा हुआ है, ये हम फर्स्ट ईयर में इंस्टेंटेनियस डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल डिस्कस कर चुके हैं। नीचे जो एग्जांपल है जो मैं आपको अभी आपके साथ डिस्कस करूंगी, तो इंशाल्लाह आपको वो टॉपिक याद आ जाएगा कि आपको याद होगा कि जब दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आते थे तो वो एक जो उसका पॉजिटिव न्यूक्लियाई था वो दूसरे के इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब कर देता था, जिसकी वजह से उस पर पोल्स डेवलप हो जाती थी। यहाँ पे देखिए जैसे कि लिखा हुआ है नोट में, पोलराइजेबिलिटी हैज़ डायरेक्ट रिलेशन विद द साइज़ ऑफ एनाइन। जितना जितना एनाइन का साइज़ बढ़ेगा पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि पोलराइजेबिलिटी हम एनाइन के लिए यूज़ कर रहे हैं। मीन साइज़ बढ़ने का मतलब ये है कि जब एनाइन नेगेटिव जो आयन है उसके इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जितने वो एक्सपोज्ड होंगे, जितना उसका साइज़ बड़ा होगा, न्यूक्लियस के पॉइंट से दूर होंगे, इतने वो ईज़िली डिस्टॉर्ट होंगे, उसका जो शेप है वो डिफॉर्म होगा ईज़िली कैटाइन की वजह से। जनरल एग्जांपल यहाँ पे गिवन है, अगर आप देख लें, कैटाइन आपको ए पॉजिटिव से शो किया गया है जिसका थोड़ा सा साइज़ छोटा है, जबकि एनाइन आपको बी नेगेटिव से शो किया है जिसका साइज़ थोड़ा बड़ा है। एनाइन का साइज़ आमतौर पर कैटाइन से बड़ा होता है। अब अगर आप देख लें, ये इनके नॉर्मल वैलेंस शेल है और इनके दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब अगर आप इसमें एक कॉमन एग्जाम्पल ले लें, सोडियम फ्लोराइड में नॉर्मल आयोनिक बॉन्ड होता है। सोडियम का साइज़ छोटा होता है, फ्लोरीन का साइज़ उससे थोड़ा बड़ा होता है।
इनमें जो टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में जो है वो इक्वल होंगे, क्योंकि फ्लोरीन ने जब एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो उसके आखिरी शेल में 8 पूरे हो गए। सोडियम ने जब एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो उसके आखिरी शेल में 8। वैलेंस शेल में तो सेम है, लेकिन जो टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके तमाम शेल्स में मिला के वो अनइक्वल है। अब अगर आप देखें गर्ल्स, इसमें जो आपके पास एन आइन है बी नेगेटिव से जिसको शो किया गया है, ये कैट आइन जो स्मॉल साइज़ है, ये पॉजिटिव आइन जो कि न्यूक्लियस के करीब है, ये इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से इसकी ये जो एनवायरनमेंट है वो डिस्टर्ब हो जाएगा और इसकी जो शेप है वैलेंस शेल की वो डिफॉर्म हो जाएगा। ठीक, यानी अब हम कह सकते हैं कि इस कैटाइन ने इस एन आइन को पोलराइज़ किया। जिस तरह मैं पिछले डेफिनेशन में बता चुकी हूँ, मेरा ख़्याल है कि वहाँ पे आपको इतनी समझ नहीं आई होंगी, लेकिन अगर आप इधर देख लें, ये जो कैटाइन है, हम कहेंगे कि कैटाइन पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटाइन तब ज़्यादा होगा कि वो अगर एक एनाइन के इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब कर सके। ठीक, और एक एनाइन का जो है वो ज़्यादा पोलराइज्ड होगा जितना ज़्यादा उसका वो जो इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट है वो डिस्टॉर्ट होगा। जो उसके इर्द गिर्द वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसको जितना ज़्यादा कैटाइन अपनी तरफ खींचेगा उसका पॉजिटिव आयन, तो उतनी ज़्यादा उसकी डिस्टॉर्शन होगी। तो जैसे कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि जो पोलराइजिंग पावर है कैटाइन की, उसका साइज़ जितना छोटा होगा वो उतना न्यूक्लियस के करीब होगा, उसमें अट्रैक्टिंग एबिलिटी मोर होगी। तो साइज़ के बढ़ने से पोलराइजिंग पावर कम होगा, जबकि साइज़ जितना छोटा होगा और चार्ज डेंसिटी जितनी ज़्यादा होंगी, जैसे आप लोग जानते हैं प्रीवियस कोर्सेज से भी कि आपके पास जो +1 चार्ज रखने वाले एलिमेंट हैं उसके मुकाबले में जो +2 है उनका साइज़ छोटा हो जाता है थोड़ा। क्यों? क्योंकि चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, इसलिए +2 की चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, साइज़ छोटा है, जबकि +1 की जो चार्ज डेंसिटी है वो कम है, साइज़ थोड़ा उससे बड़ा है। लेकिन अगर हम एक ही ग्रुप में बात करते हैं, टॉप टू बॉटम हम आ रहे हैं, तो हमारे पास जो चार्ज डेंसिटी है वो तो डिक्रीज़ हो रही है, जैसे कि मैंने आपको चार्ज टू साइज़ रेशो से बताया, चार्ज टू वॉल्यूम रेशो से बताया है, लेकिन जो साइज़ है वो इंक्रीज़ हो रहा है। यानी हम कहेंगे कि जो कैटाइन है उसका साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है। टॉप टू बॉटम जो मेटल कैटाइन हैं उनका एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है, तो उनका जो साइज़ है वो इंक्रीज़ हो रहा है। तो हम कहेंगे कि पोलराइजिंग पावर जो है उसका ऑफ कैटाइन उसका साइज़ के साथ इन्वर्स रिलेशन है, जबकि पोलराइजिबिलिटी ऑफ एनाइन जो है उसका उसके साइज़ के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, क्योंकि जितना बड़ा एनाइन का साइज़ होगा वो इतना ही न्यूक्लियस से दूर होगा, उसका ईजिली उसको हम जो है उसके इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट को डिस्टॉर्ट कर सकेंगे। So now here is given the detail how this polarized anion is formed. When the valence electrons of the larger anion they are attracted by the small cation, so the shape of the valence shell is deformed, and electron cloud of the valence shell of the anion becomes unsymmetrical. अब अगर आप देखिए पहले तो ये उसकी अपनी स्फेरिकल शेप थी, लेकिन अब उसकी वो शेप नहीं रही, वो अनसिमेट्रिकल हो गया। इलेक्ट्रॉन्स भी जो है वो जब अगर इक्वली अरेंज है अपने अपनी शेल्स में, न्यूक्लियस सेंटर में है, तो वो सिमेट्रिकल होता है, लेकिन अब उसकी सिमेट्री ख़राब हो गई है, वो अनसिमेट्रिकल है। नाउ दिस इज़ कॉल्ड पोलराइजेशन ऑफ एनाइन बाय कैटाइन, यानी एनाइन को कैटाइन ने पोलराइज कर दिया है, उसके ऊपर चार्ज डेवलप हो जाते हैं। So the polarizing power is the ability of cation to polarize anion. What is now polarizability? Polarizability is the tendency of anion to get polarized, यानी नेगेटिव आयन में उसमें ये टेंडेंसी हो कि वो उसके जो इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट है उसको कैटाइन डिस्टर्ब कर सके, तो उसको कहते हैं polarizability of anion. So due to the polarization of anion, an ionic bond acquires some partial covalent character. अब अगर पहले आपके पास एक आयनिक बांड था, जैसे सोडियम फ्लोराइड की हमने पिछले उसमें स्लाइड पे एग्जांपल दी है कि जो सोडियम फ्लोराइड है उसमें आयनिक बांड था, लेकिन इधर जो जनरली मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ कि अगर कैटाइन उसको इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है, इट मीन्स कि इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप हो रहा है। ठीक, जैसे कंप्लीट ट्रांसफ़र नहीं है लेकिन उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप हो रहा है। नाउ सो वी कैन से दैट the extent of polarization it has a direct relation with the covalent character in the ionic bond. जितना जितना पोलराइजेशन जितनी ज़्यादा होगी उसमें जो है आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट करेक्टर उतना ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। सो एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन का आयनिक करेक्टर के साथ तो इन्वर्स रिलेशन है, लेकिन कोवेलेंट करेक्टर के साथ उसका डायरेक्ट रिलेशन है।
अब आयनिक बॉन्ड चूँकि एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, जबकि कोवेलेंट बॉन्ड उसके मुकाबले में वीक बॉन्ड है, तो जितनी ज़्यादा पोलराइजेशन होगी इट मीन्स के स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं है, जबकि उसके मुकाबले में थोड़ा वीक बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है, तो उसकी थर्मल स्टेबिलिटी भी डिक्रीज़ हो जाएगी। जैसे कि एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन का थर्मल स्टेबिलिटी के साथ इन्वर्स रिलेशन गिवन है। नाउ इफेक्ट ऑफ हीट, यहाँ से उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स कि आपको समझ आ गई होगी। अब आगे हम यही जो कॉन्सेप्ट हैं, आगे हम जिन जिन की नाइट्रेट्स की या कार्बोनेट्स की या बाइकार्बोनेट्स की जो थर्मल स्टेबिलिटी हम डिस्कस कर रहे हैं, उसमें यही कॉन्सेप्ट जो है हमारे पास इन्वॉल्व होगा। सो नाउ इफेक्ट ऑफ हीट ऑन नाइट्रेट्स ऑफ ग्रुप 1A and 2A, or we can say in another words thermal stability of nitrates of group 1A or group 2A. So first of all, what are the nitrates of group 1A, and then we will discuss about their thermal stability. So first of all, the nitrates of the group 1A alkali metal nitrates are lithium nitrate, sodium nitrate, potassium nitrate, rubidium nitrate and cesium nitrate. So now then is there, we will discuss about their thermal stability. So what is thermal stability or thermal decomposition? It is a term which is given to splitting up a compound by heating it. लाइक अगर हम एक कंपाउंड को हीट कर रहे हैं और उसकी ब्रेक डाउन होती है, तो एक कंपाउंड किस टेम्परेचर पे ब्रेकअप उसकी हो रही है। अगर उसमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है तो ज़ाहिर है हाई प्रेशर पे होगा, लेकिन अगर वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक है तो थोड़ा लो टेम्परेचर पे डिकम्पोज हो जाएगा। सो दिस इज़ कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन या थर्मल स्टेबिलिटी, यानी वो किस हद तक एक टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकता है, उसकी ब्रेक डाउन किस टेम्परेचर से तक जो है उस पर होती है, किस से पहले, उस टेम्परेचर से पहले वो कंपाउंड फॉर्म में ही रहेगा। नाउ द थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ नाइट्रेट्स ऑफ ग्रुप 1, most of the nitrates they tend to decompose on heating to give metal oxides, brown fumes of nitrogen dioxide and oxygen. It means they want to say कि हमारे पास जब नाइट्रेट्स की डिकम्पोजिशन होगी हीटिंग पे, तो हमारे पास क्या क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे। ग्रुप 1 की हम बात करें, नाइट्रेट्स ऑफ ग्रुप 1A की, तो उसमें मेटल ऑक्साइड बनेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा और ऑक्सीजन बनेगा। जैसे अगर हम फर्स्ट जो नाइट्रेट है हमारे पास ग्रुप 1 में, वो लिथियम नाइट्रेट है, वो लिथियम ऑक्साइड में डिकम्पोज हो रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में और ऑक्सीजन में। लेकिन जो रेस्ट ऑफ ग्रुप 1 नाइट्रेट्स हैं, दे डू नॉट डिकम्पोज सो कम्प्लीटली एट द बंसन टेम्परेचर प्रोड्यूसिंग मेटल नाइट्रेट एंड ऑक्सीजन, बट डू नॉट गिव नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब अगर हमारे पास जो लिथियम नाइट्रेट है, वो तो तकरीबन सेकेंड ग्रुप की तरह उसकी डिकम्पोजिशन हो रही है कि ये जनरल फार्मूला हमें पहले लिखना चाहिए। इसको देख लें, MnO3 सिंगल डैश शो द +1 वैलेंसी ऑफ द alkali metals. So when the metal nitrate of the group 1 elements, when it is heated, it decomposes into metal oxide, nitrogen dioxide and oxygen, but this is only for the lithium nitrate. यानी ये जो जनरल रिएक्शन है ये सिर्फ लिथियम नाइट्रेट इसको ओबे कर रहा है, इस किस्म के प्रोडक्ट्स लिथियम नाइट्रेट देगा, जबकि बाकी जो नाइट्रेट्स है इस ग्रुप के, जब उनकी डिकम्पोजिशन होगी तो आप अगर नीचे रिएक्शन को देख लें तो आपके पास जो है मेटल नाइट्राइट बनेगा और साथ ऑक्सीजन गैस बनेगी। ये अगर आप देख लें, MnO3 में 3 ऑक्सीजन है, तो O2 में 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे हो गए और हाफ O2 का मतलब है सिंगल ऑक्सीजन, तो 3 ऑक्सीजन टोटल इसमें इक्वल हो जाते हैं। अब ये जो मेटल नाइट्राइट बना है, मेटल नाइट्रेट की डिकम्पोजिशन से ये फर्दर अगर हीटिंग प्रोवाइड करें तो ये मेटल ऑक्साइड, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में डिवाइड हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। अब अगर आप देख लें 3/2 O2 लिखा हुआ है, 3/2 का मतलब ये 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो 3O, यानी यहाँ पे 3 और 1 मेटल ऑक्साइड के साथ 4 ऑक्सीजन मौजूद है प्रोडक्ट साइड पे, जबकि MnO2 में इसके हम 2 मोल्स लेंगे तो तब इसमें भी 4 ऑक्सीजन होंगे। यानी हम अगर ये जो नीचे प्रोडक्ट्स पर्पल कलर से शो किए हुए हैं, ये अगर हम बनाएंगे तो इसके लिए हम 2 मोल्स ऑफ MnO2 लेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो लिथियम नाइट्रेट हैं वो डिकम्पोजिशन पे लिथियम ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन देगा, जबकि बाकी जो नाइट्रेट्स हैं वो नाइट्राइट, मेटल नाइट्राइट और ऑक्सीजन देंगे, वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं करेंगे और ना ही ऑक्साइड। So all the nitrates from sodium to cesium decompose in the same way and the thermal stability increases as we go down the group. प्रोडक्ट्स तो वही देंगे जैसे मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि नाइट्राइट और ऑक्सीजन, लेकिन अब आप देख लें सबको तो सब ने यही प्रोडक्ट्स दिए हैं, लिथियम के अलावा जो बाकी नाइट्रेट्स हैं सब के जो प्रोडक्ट्स हैं वो नाइट्राइट और ऑक्सीजन हैं। नाउ नाइट्रेट्स ऑफ द ग्रुप 2, all the nitrates of the group 2 undergo thermal decomposition to give the metal oxide, nitrogen dioxide and oxygen. अब अगर हम ग्रुप 2 की बात करें, ग्रुप 2 के लिए हम MnO3 होल ट्वाइस लिखेंगे, क्योंकि जो M है उसकी वैलेंसी यहाँ पे NO3 होल ट्वाइस के नीचे आ गई है, तो उसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे
तो वो जो है आपके पास हीटिंग पे डिकम्पोज होकर मेटल ऑक्साइड देगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देगा और ऑक्सीजन देगा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के जो फ्यूम्स होते हैं वो ब्राउन कलर के होते हैं। नाउ ऑल द नाइट्रेट्स ऑफ द ग्रुप 2A डिकम्पोज इन द सेम वे बाय हीटिंग। अगर आप देख लें जैसे बाकी जो नाइट्रेट है इसमें हमने मैग्नीशियम नाइट्रेट और कैल्शियम नाइट्रेट लिया है ग्रुप 2 में, तो वो भी आपको मेटल ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दे रहा है। अब ये जो नाइट्रेट्स है या जो ऑक्साइड्स है वो किस फॉर्म में होंगे उसको हम डिस्कस करते हैं। ऑल द नाइट्रेट्स आर वाइट सॉलिड्स एंड ऑक्साइड्स प्रोड्यूस्ड आर आल्सो वाइट सॉलिड्स। As we go down the group, the stability of the nitrates increases and it needs more heat for its decomposition due to increasing size of the cation, decreasing charge density and decreasing polarizing power of the cation. Its decomposition becomes difficult. Dear students, यहाँ पर एक बात का ख्याल रखें, ये जो टॉपिक अब हम आगे इस चैप्टर में डिस्कस कर रहे हैं जिसमें ये टॉपिक भी शामिल है, इसमें जो है ईटा के लिहाज से ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ आपने इसको बहुत गौर से सुनना है। इसमें आपसे मोस्टली क्वेश्चन आस्क्ड होते हैं ईटा में कि टॉप टू बॉटम जो है वो ग्रुप 2 के नाइट्रेट्स जो है या ग्रुप 1 के जो नाइट्रेट्स हैं उनकी थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज़ होती है या डिक्रीज़ होती है, या विच वन जो नाइट्रेट है ऑफ द ग्रुप 1A या ग्रुप 2A वो मोर स्टेबल है या लेस स्टेबल है। तो जैसे कि यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि जब हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो हमारे पास जो नाइट्रेट्स हैं उसकी थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज़ होंगी। इंक्रीज़ होंगी का मतलब ये है कि उसको हीटिंग के लिए ज़्यादा टेम्परेचर रिक्वायर होगा, जो कि ऊपर वाले हैं जो नाइट्रेट्स हैं वो इजीली, चाहे वो 1 ग्रुप के हो या 2 के हो, वो इजीली डिकम्पोज हो जाएंगे। जैसे कि मैं आपको पहले ही वजह बता चुकी हूँ कि हमारे पास जो पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन है अगर वो कम होगा मीन्स उसका कैटायन का साइज़ बढ़ गया तो उसका पोलराइजिंग पावर कम हो गया तो वो ईज़िली उस इलेक्ट्रॉन्स को डिस्टर्ब नहीं कर सकता, जिसकी वजह से उसकी ब्रेकिंग मुश्किल हो जाती है। जबकि टॉप वाले जो कैटायन है उसका साइज़ स्मॉल है, चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, उनका पोलराइजिंग पावर भी ज़्यादा होगा और वो इजीली इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब करेंगे और इजीली ब्रेक डाउन हो जाएंगे। तो कैटायन और एनायन आप इसमें अलग हो जाएंगे। तो टॉप टू बॉटम हमारे पास थर्मल स्टेबिलिटी जो है इंक्रीज़ होती है, जिसकी जो वजह है वो यहाँ पे पॉइंट्स में गिवन है कि इंक्रीजिंग साइज ऑफ कैटायन, डिक्रीजिंग चार्ज डेंसिटी, डिक्रीजिंग पोलराइजिंग पावर। नाउ द थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स ऑफ द ग्रुप 1A एंड ग्रुप 2A। इस टॉपिक से मोस्टली आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस भी हैं और कुछ आपको असाइनमेंट में भी इंशाल्लाह मैं दे रही हूँ। सो नाउ द इफेक्ट ऑफ हीट ऑन कार्बोनेट्स ऑफ ग्रुप 1A। So when the metal carbonates, when they are heated, they gives metal oxides and carbon dioxides. Like mostly the like this is general reaction, but the lithium carbonate mostly decompose in such a way, while the other carbonates they are very stable of the first group. Like lithium carbonate, when it decompose below is given a reaction, it gives the lithium oxide and carbon dioxides. While the other carbonates of the group 1A, they do not decompose at high temperature due to decreasing polarizing power of cation, increasing size of the cation and decreasing charge density of the cation. So we can show it in such a way, like the carbonates of sodium, potassium, cesium and rubidium except lithium, they do not have any decomposition even at high temperature. It means they are very thermally very stable, and when we go from top to bottom it means the thermal stability increases. Here is given here is given one of the point, note it please. As we go down the group, the reactivity of metal increases. So more reactivity of the metal, more stable will be its compounds like metal carbonates, metal bicarbonates and metal nitrates. हर केस में हम ये बात कर सकते हैं, आपके पास अगर एक मेटल है और वो बहुत रिएक्टिव है, जैसे कि आप लोग पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में कि जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो हमारे पास मेटल की रिएक्टिविटी इंक्रीज़ होती है। मेटल की रिएक्टिविटी इंक्रीज़ होती है मींस यानी उसका रिएक्शन करने की जो सलाहियत है वो इंक्रीज़ होती है, क्योंकि साइज़ बढ़ता है और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो इजीली लूज़ हो सकता है, न्यूक्लियस से दूर हो जाता है तो इजीली लूज़ हो सकता है। तो मेटल जो है वो टॉप टू बॉटम मोर रिएक्टिविटी उसकी इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन जो उसके कंपाउंड होंगे जितने ज़्यादा वो एक मेटल जो रिएक्टिव होगा, जैसे टॉप टू बॉटम वाले जो एलिमेंट्स होंगे, मेटल्स होंगे, उनके जो कंपाउंड होंगे वो मोर स्टेबल होंगे, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एक दूसरे के साथ अटैच्ड होंगे, उनकी ब्रेकडाउन मुश्किल हो जाएगी। Here is a sketch given to understand this mechanism. Like when we go in a group from top to bottom, the polarizing power of the cation decreases, क्योंकि साइज़ ऑफ कैटाइन जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। ये एरो से आपको शो हो रहा है, तो ज़ाहिर है साइज़ बड़ा होगा तो उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकेगा, क्योंकि वो न्यूक्लियस से दूर है, पॉजिटिव चार्ज का फिर इतना असर नहीं होगा।
चार्ज डेंसिटी जो है वो इंक्रीज़ होती है। जब मैं ये टॉप टू बॉटम की बात कर रही हूँ, इसमें ये सब चेंजेस होंगी, ट्रेंड्स ये हम यहाँ पे टॉप टू बॉटम में ही डिस्कस कर रहे हैं कि जब हम टॉप टू बॉटम में ग्रुप में जाएंगे तो पोलराइजिंग पावर डिक्रीज़ होगा, एरो डाउन की तरफ है। साइज ऑफ केटाइन इंक्रीज़ होगा, एरो अपवर्ड है। चार्ज डेंसिटी इंक्रीज़ होगी, एरो अपवर्ड है। थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड इंक्रीज़ होगी, एरो अपवर्ड की तरफ जा रहा है। इसका मतलब है कि जो थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड है उसका जो रिलेशन है वो चार्ज डेंसिटी से और साइज़ ऑफ केटाइन से है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कंक्लूजन में कि स्मॉल साइज केटाइन काजेज मोर डिस्टॉर्शन ऑफ एनाइन एंड फैसिलिटेट डिकम्पोजिशन। जैसे कि अभी मैंने पिछले केस में डिस्कस किया कि जितना ज़्यादा केटाइन का साइज़ छोटा होगा, वो उसका न्यूक्लियस के करीब होगा, वो उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एनाइन को अट्रैक्ट करेगा और उतनी ज़्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करेगा और उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो डिफॉर्म हो जाएगा, उसका जो शेप होगा, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डिस्टर्ब हो जाएगा तो इजीली उसकी ब्रेक डाउन हो जाएगी। यानी ये जो स्मॉल साइज़ ऑफ केटाइन है वो फैसिलिटेट करता है डिकम्पोजिशन को। अब आपसे एंट्री टेस्ट में, ईटा टेस्ट में ये भी पूछ सकते हैं, ये आपके पास ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स ऑफ ग्रुप 1 गिवन है। अगर आप देखें टॉप टू बॉटम जो है ये इंक्रीज़ हो रहा है, पोलराइजिंग पावर डिक्रीज़ हो रहा है, जबकि थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है। नाउ इफेक्ट ऑफ हीट ऑन बाइकार्बोनेट्स ऑफ द ग्रुप 1 ए यहाँ पर गिवन है। पहले हमने कार्बोनेट डिस्कस किया, हम बाइकार्बोनेट की बात करेंगे। सो बाइकार्बोनेट की भी तकरीबन उसी तरह से बात है। हाइड्रोजन कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट ऑफ द ग्रुप 1 ए अल्कली मेटल, दे हैव अ स्मॉल पॉजिटिव आयन, it has a lot of charge packed into the small volume of space, and a bigger positive ion has the same charge spread over the large volume of space, so its charge density will be lower. यहाँ देख लें आप, वही बात डिस्कस हो रही है जो कि मैं आपको पिछले अभी डिस्कस की है, जो चार्ज टू वॉल्यूम रेशो में या चार्ज टू साइज़ रेशो में मैंने डिस्कस किया कि आपके पास एक ही चार्ज डेंसिटी है लेकिन साइज़ में फ़र्क है। टॉप पे जो एलिमेंट है ग्रुप 1 में उनका साइज़ छोटा है, चार्ज डेंसिटी वही +1 है, तो वो उसके लिए जो वॉल्यूम प्रोवाइडेड है वो कम है, यानी वो चार्ज डेंसिटी कम वॉल्यूम में आ रही है। जैसे लिखा हुआ है कि हैज़ अ लॉट ऑफ चार्ज पैक्ड इनटू स्मॉल वॉल्यूम ऑफ स्पेस। लेकिन अगर आप बॉटम पे जाएं तो वॉल्यूम ऑफ स्पेस जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन जो पॉजिटिव आयन है चूँकि साइज़ बढ़ रहा है, बिगर पॉजिटिव आयन का मतलब ये है क्योंकि साइज़ बढ़ रहा है तो पॉजिटिव आयन वही है तकरीबन +1, तो अब वो लार्ज स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो चार्ज डेंसिटी है जो हम टॉप टू बॉटम कह रहे हैं, यानी वो स्पेस ज़्यादा है, चार्ज उसमें कम है। ऊपर स्पेस कम था, उसमें चार्ज भी कम था, तो ऊपर हम कहेंगे कि चार्ज डेंसिटी ज़्यादा थी, जबकि यहाँ पे जो चार्ज डेंसिटी है वो नीचे आके वो कम हो गई है, क्योंकि चार्ज टू साइज़ रेशो या चार्ज टू वॉल्यूम रेशो जो है वो इंक्रीज़ हो गया है। Now it will cause as the charge density decreases, so it will cause less distortion to a nearby negative ion, and we can say that the thermal stability of the bicarbonate increases from top to bottom. जितनी जितनी जो डिस्टॉर्शन कम होंगी तो ज़ाहिर है जो थर्मल स्टेबिलिटी है बाइकार्बोनेट्स की, जैसे कि मैंने कार्बोनेट में डिस्कस किया, वो इंक्रीज़ होती जाएंगी टॉप टू बॉटम। ये जनरली हम मेटल बाइकार्बोनेट को इस तरह से लिख सकते हैं, MHCO3, MS फॉर मेटल बाइकार्बोनेट इज HCO3, सो इट विल व्हेन इट इज डिकम्पोज ऑन हीटिंग जनरल रिएक्शन इज इट गिव मेटल कार्बोनेट M2CO3। M2CO3 हम ग्रुप 1 के बाइकार्बोनेट्स के लिए लिख रहे हैं क्योंकि कार्बोनेट का -2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है और M का +1, तो उसका जो कार्बोनेट का 2 होगा वो नीचे आ जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, साथ वाटर बनेगा। नो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स ऑफ ग्रुप 1 बाइकार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स ऑफ ग्रुप 1। जैसे अब पिछले में अभी मैंने आपको थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर शो किया था ग्रुप 1 का कार्बोनेट्स का, तो अब ये ग्रुप 1 बाइकार्बोनेट का थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर है जो कि टॉप टू बॉटम इंक्रीज़ हो रहा है। जैसे हम जो सीजियम बाइकार्बोनेट है वो मोर स्टेबल हैं, मोर स्टेबल इस तरह से है कि वो मोर आयानिक है। अभी आगे आपको एक नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह मैंने समझाना है कि ये सीजियम का साइज़ लार्ज है, बाइकार्बोनेट का लार्ज है, तो लार्ज साइज़ जो आयन्स होते हैं कैटाइन और एनाइन वो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप करते हैं, जबकि जो स्मॉल साइज़ जैसे लिथियम और बाइकार्बोनेट लार्ज है तो स्मॉल साइज़ लार्ज साइज़ वो इतनी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप नहीं करते, तो वो लीस्ट स्टेबल होते हैं। Now effect of heat or thermal stability of group 2A carbonate and bicarbonate and its comparison with the carbonate and bicarbonate of the group 1A। यहाँ पर ये टॉपिक हमने इस तरह से दिया हुआ है इस वजह से क्योंकि ये आगे आपका एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चंस हैं, एक में कार्बोनेट्स ऑफ ग्रुप 1A ग्रुप 2A से कंपैरिजन करना है आपने, और सेकंड में बाइकार्बोनेट्स ऑफ ग्रुप 1A एंड ग्रुप 2A को कंपेयर करना है।
अभी मैं आगे आपको इंशाल्लाह बताऊंगी। सो द कार्बोनेट्स ऑफ ग्रुप 2A आप देख लें, बेरिलियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, इन द सेम वे टॉप टू बॉटम जो है वो थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है, जबकि पोलराइजिंग पावर डिक्रीज़ हो रहा है। अब यहाँ देखिए, आप जनरल एग्जांपल गिवन है मेटल कार्बोनेट का, हम यहाँ पे M2 नहीं लिखेंगे, हम MCO3 लिखेंगे। +2 -2 एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाते हैं। प्लस ग्रुप 2 के लिए हम मेटल कार्बोनेट को MCO3 लिखेंगे, जबकि बाई कार्बोनेट को MHCO3 होल ट्वाइस लिखेंगे, जो +2 है। अब बाई कार्बोनेट की तो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, तो वो 2 नीचे आ जाता है, उसको होल स्क्वायर में बंद कर लेते हैं नीचे, अगर आप देख लें तो गिवन है। तो मेटल कार्बोनेट की जब ग्रुप 2 की डिकम्पोजिशन होती है तो वो मेटल ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड देगा आपके पास। अब कॉमन एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट, आपको उसकी डिकम्पोजिशन गिवन है। अब ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी गिवन है, जिसमें बेरिलियम बाई कार्बोनेट जो है वो लीस्ट स्टेबल है, जबकि बेरियम बाई कार्बोनेट जो है वो मोर स्टेबल है। इसी तरह जनरल एग्जांपल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ बाइकार्बोनेट्स आपको गिवन है। अगर बाइकार्बोनेट डिकम्पोज होंगे सेकेंड ग्रुप के, तो वो मेटल कार्बोनेट देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड देंगे और वाटर देंगे। जैसे जनरली कॉमनली आपको एक एग्जांपल गिवन है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट डिकम्पोज टू गिव कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब अगर मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट डिकम्पोज होगा तो वो मैग्नीशियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर तो देगा, लेकिन उसका जो मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये मोस्टली बुक्स में और नेट पे भी गिवन है कि वो मैग्नीशियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में डिकम्पोज हो जाएगा फर्दर हीटिंग पे, यानी ये मैग्नीशियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देगा। यहाँ पर एक बात लिखी हुई है जीके के लिए आपके लिए, कि द साइज़ ऑफ कार्बोनेट जो है, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया कि वो लार्ज होता है, और जब कैटाइन भी लार्ज हो तो जो बॉन्ड जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा और स्टेबल होगा, तो थर्मल स्टेबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ होगी, जैसे कि बेरियम बाइकार्बोनेट के केस में है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज का, वाई द हाइड्रोजन कार्बोनेट्स ऑफ ग्रुप 1A आर थर्मली मोर स्टेबल देन द हाइड्रोजन कार्बोनेट्स ऑफ ग्रुप 2A। अब इसको मैं इस तरह से डिस्कस करूँगी कि जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने समझाया था, इन्होंने लिखा हुआ है कि द थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ बाइकार्बोनेट ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप due to increase in the size of cation, decrease in the charge density and decrease in the polarizing power of cation। बाकी तो वही reasons है, but the bicarbonate of group 1A they are thermally more stable than those of the group 2A, because the group 2 metal ions they have greater charge density and small size, so they have greater ability to distort the bicarbonate and facilitate its decomposition than the group 1A। इसका मतलब ये है, बाकी तो उसी तरह से एक्सप्लेन किया गया है कि ग्रुप 1A या ग्रुप 2A में ये सिमिलरिटी है कि टॉप टू बॉटम उनकी थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज़ होती है। रीजंस भी बताए जा चुके हैं, क्योंकि इंक्रीज साइज ऑफ केटाइन है, डिक्रीज़ इन चार्ज डेंसिटी है, डिक्रीज़ इन पोलराइजिंग पावर ऑफ केटाइन है। ये सारे रीजंस आप लोग पढ़ चुके हो, डिस्कस कर चुके हैं हम। लेकिन जो एक दूसरा रीज़न है जिसमें हम ग्रुप 1A और ग्रुप 2A के बाइकार्बोनेट को या कार्बोनेट को कंपेयर करेंगे, यहाँ पे हम बाइकार्बोनेट कर रहे हैं। कार्बोनेट वाला क्वेश्चन आपको मैंने असाइनमेंट में दिया हुआ है, जो जिसका आंसर आपको यूनिक में इंशाल्लाह मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो बाइकार्बोनेट है 1A का और 2A का, तो अगर आप कैटाइन ले 1A का तो उसके ऊपर +1 चार्ज होता है, जबकि 2A का कैटाइन ले तो उसके ऊपर +2 चार्ज होता है। तो कौन सा कैटाइन बड़ा है? कैटाइन ऑफ +2 चार्ज जो है वो छोटा है, जबकि कैटाइन ऑफ +1 चार्ज वो बड़ा है। इसलिए क्योंकि +2 डबल पॉजिटिव चार्ज जो है वो न्यूक्लियस की तरफ मोर अट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है साइज़ में। तो जितना छोटा साइज़ होगा उतना ज़्यादा वो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ नेगेटिव आयन होगा, यानी कंपाउंड में वो कनेक्ट है वो कैटाइन एनाइन के साथ, तो वो उसको इतना ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा, उतना ज़्यादा डिस्टॉर्ट करेगा, उतना ज़्यादा उसके शेप को डिफॉर्म करेगा। तो इसका मतलब ये है कि पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटाइन ऑफ ग्रुप 2A जो है वो ग्रेटर है ग्रुप 1A के मुकाबले में। अगर पोलराइजिंग पावर ऑफ ग्रुप 2A ग्रेटर है तो इसका मतलब है कि उसकी थर्मल डिकम्पोजिशन जो है वो जल्दी होगी, यानी वो जल्दी ब्रेकअप होगा, यानी वो थर्मली स्टेबल इतना नहीं है जितना कि ग्रुप 1A के बाइकार्बोनेट थर्मली स्टेबल हैं, उतने ग्रुप 2A वाले स्टेबल नहीं हैं, क्योंकि ग्रुप 2A का जो कैटाइन है वो इजीली उसको ब्रेकअप कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, अपनी तरफ डिकम्पोज कर रहा है। यहाँ पे आपको एक एग्जांपल गिवन है, जनरली अगर आप देख लें M+2 मेटल आयन को शो कर रहा है, जबकि बाइकार्बोनेट जो है HCO3, इसमें जो एक के साथ OH कनेक्ट है कार्बन के साथ राइट साइड पे, जबकि एक O और दूसरा जो O है टॉप पे और लेफ्ट साइड पे, इसमें कभी सिंगल बॉन्ड कभी डबल बॉन्ड इसमें रेजोनेंस होती रहती है, जैसे कि आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हो। इनके दरमियान में जो नेगेटिव और पॉजिटिव आयन है बाइकार्बोनेट मेटल आयन, इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो जो पॉजिटिव आयन है इट विल अट्रैक्ट द डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन इन बाइकार्बोनेट वेरी स्ट्रांगली एंड इट पोलराइज इट एंड कास्ट इट्स डिकम्पोजिशन।
ये आप लोग इंशाल्लाह यहाँ से उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अब आपको एक्सरसाइज में होमवर्क भी एक क्वेश्चन दिया है। Now the homework, the short question, question number 7 and question number 8, and long question, question number 7 of the exercise. The two questions, one of the short and one of the long, they are same. But one of the question, I think it is question number 8 of the short question, like compare the like why the carbonates of the group 1A they are thermally more stable than the carbonates of the group 2A। तो इन द सेम वे आप लोगों ने डिस्कस करना है जिस तरह मैंने बाई कार्बोनेट का डिस्कस किया है अभी आपके सामने। आप यूनिक बुक से सर्च भी कर सकते हैं। सो उम्मीद है कि आप सबको समझ आ गई होंगी। अपना असाइनमेंट जो है वो याद से कीजिएगा और कोशिश करें कि उसको लर्न भी करते जाएं क्योंकि बहुत थोड़े दिन रह गए हैं। नाउ थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।